Today we are going to study a case study which is on Nike and it is taken from the marketing management book uh, of Philip Kotler. So let's get started. Nike hit the ground running in 1962. I think it means they have started their operation in 1962. Originally known as Blue Ribbon Sports. So you can see it is quite a young organization or a young company, because if you see Nestle and all those companies, they were so many years back, 100 years back, more than 100 years back. Even I was yesterday we were talking about Philips company. It was 200, 300 years old. So Nike is comparatively new company from 1962. Originally known as Blue Ribbon Sports, the company focused on provide high quality running shoes designed for the athlete by athletes. So this was earlier known as a Blue Ribbon Sports. So this was the first name, Blue Ribbon Sports Company. So quite a strange name, Blue Ribbon Sports Company. The company focused on the providing high quality running shoes designed for the athletes by athletes. तो ये कंपनी 1962 से स्टार्ट हुई। ये कंपनी पहले ब्लू रिबन स्पोर्ट्स नाम से जानी जाती थी, और ये ऐसा बोला जाता था कि ये एथलीट लोगों के लिए बनाए हुए प्रोडक्ट्स से अच्छे क्वालिटी के एथलेटिक्स एथलीट्स ने बनाए हैं, एथलीट्स के लिए, और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। फाउंडर फिलिप नाइट बिलीव्ड हाई टेक शूज फॉर runners could be manufactured at competitive price if imported from abroad. तो जो फिलिप नाइट था, इसका मानना था कि हम सस्ते दाम पे अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स एथलीट्स के लिए बना सकते हैं। नाइकीज commitment to designing innovative footwear for serious athletes helped build a cult following among US consumers. Nike's commitment to designing innovative footwear for serious athletes helped build a cult following among US consumers. तो हुआ क्या कि नाइकी ने शुरू किया सीरियस एथलीट्स के लिए फुटवेयर बनाना, डिज़ाइन करना, इनोवेट करना। उससे एक ऐसी कम्युनिटी और ऐसे फॉलोअर्स फॉलो करने लगे, या उसको पसंद करने लगे ये प्रोडक्ट्स को, कि ये बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। Nike believed in a pyramid of influence where the preference of a small percentage of a top athletes influence the product and brand choices of others. तो ये नाइकी लॉजिक क्या लगाया था, नाइकी लॉजिक क्या लगाता था कि वो पिरामिड ऑफ इन्फ्लुएंस यूज करता था। मतलब इन्फ्लुएंस करके लोगों को प्रोडक्ट बेचने के लिए मजबूर कर देना। तो ये नाइकी क्या करता था, जो टॉप के एथलीट्स थे उनको एंडोर्स करता था, उनको अपने प्रोडक्ट्स बेचता था, और उनके एज अ ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर करके हायर करता था। तो उनको देख के बहुत लोग इंस्पायर होते थे और वैसे ही प्रोडक्ट्स परचेस करते थे। नाइकीज मार्केटिंग कैंपेन हैव ऑलवेज फीचर्ड अकम्पलिश्ड एथलीट्स। तो नाइकी के मार्केटिंग कैंपेन में ऑलवेज ये दिखाया गया है कि जो विनर एथलीट्स है या सक्सेसफुल एथलीट्स है वो उनको फोकस किया गया है। फॉर एग्जांपल, रनर स्टीव प्रीफोंटेन, the company's first spokesperson, had an irreverent attitude that matched Nike spirit. जो कंपनी का फर्स्ट जो स्पोक्स पर्सन था, स्टीव प्रीफोंटेन, ये भी एक अच्छा एथलीट था, सक्सेसफुल एथलीट था। In 1985, Nike signed up then rookie guard Michael Jordan as a spokesperson. तो ये जो टॉप के एथलीट्स थे, सक्सेसफुल एथलीट्स थे, जिनकी लाइफ पूरा मतलब एज अ सक्सेसफुल स्पोर्ट्स पर्सन बनी है, उनको ये अपने स्पोक्स पर्सन अपॉइंट करते थे ताकि लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके। जॉर्डन वॉज स्टिल अप एंड कमर
but he personified superior performance. Nike's bet paid off. The Air Jordan line of basketball shoes flew off the shelves and revenues hit more than 100 million in the first year alone. तो नाइकी की ये जो स्ट्रैटेजी थी ये बहुत सक्सेसफुल हो गई और पहले ही साल में $100 मिलियन का रेवेन्यू नाइकी ने कमाया. एज वन रिपोर्टेड स्टेटेड फ्यू मार्केटर्स हैव सो रिलायबली been able to identify and sign athletes who transcend their sports to such a great effect. In 1988, Nike aired the first ads in its 20 million Just Do It ad campaign. In 1988, Nike aired the first ads in its 20 million Just Do It ad campaign. तो 1988 में उन्होंने एक मार्केटिंग कैंपेन चलाया जिसका बजट था 20 मिलियन और वो सक्सेसफुल एडवर्टीजमेंट कैंपेन है जस्ट डू इट. The campaign, which ultimately featured 12 TV spots in all, subtly challenged a generation of athletics enthusiasts to chase their goals. तो ये जो कैंपेन था उसकी वजह से लोग अपने गोल चेस करने के लिए मजबूर हो गए या फिर आप बोल सकते हैं कि मोटिवेट हो गए. द कैंपेन विच अल्टीमेटली फीचर 12 टीवी स्पॉट्स इन ऑल सबटली चैलेंज्ड जनरेशन ऑफ एथलेटिक्स enthusiasts टू चेस देयर गोल्स. तो ये इन्होंने 12 टीवी चैनल्स पे स्पोर्ट्स चैनल पे ये अपना एड फीचर किया और बहुत सारे जनरेशन्स इसको इस एड को फॉलो करके अपने अपने गोल को अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मोटिवेट हुए. इट वॉज अ नेचुरल मैनिफेस्टेशन ऑफ द नाइकीज एटीट्यूड ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट थ्रू स्पोर्ट्स. इट वॉज नेचुरल मैनिफेस्टेशन ऑफ नाइकीज एटीट्यूड ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट थ्रू स्पोर्ट्स. तो नाइकी ने स्पोर्ट्समैनशिप को जो इनर जो गट फीलिंग थी स्पोर्ट्स पर्सन की एथलीट्स की कि मुझे स्पोर्ट्स पर्टिकुलर स्पोर्ट में सक्सेसफुल बनना है, इसको मोटिवेट किया. उनकी गट फीलिंग को उनकी कॉन्फिडेंस को मोटिवेट किया. In 1988, Nike, Nike aired the first ads in its 20 million Just Do It ad campaign. Okay, the campaign, which ultimately featured 12 TV spots in all, subtly challenged a generation of athletics enthusiasts to chase their goals. It was a natural manifestation of Nike's attitude of self empowerment through sports. As Nike began expanding overseas, the company learned that its US style ads were seen as too aggressive in Europe, Asia and South America. तो जैसे जैसे ये यूएस के बाहर अपने प्रोडक्ट्स बेचने शुरू कर दिया, बाकी जैसे यूरोप एशिया और साउथ अमेरिकन कंट्रीज में इसको टू एग्रेसिवली देखने लगा क्योंकि नाइकी के एडवर्टीजमेंट बहुत एग्रेसिव होते थे और यूरोप एशिया और साउथ अमेरिका के जो कल्चर है बहुत ही सॉफ्ट या हम्बल पोलाइट रहते थे. तो जैसे ही आप ग्लोबली बड़ा ब्रांड बनते हैं ग्लोबली प्रोडक्ट सेल करना चालू कर देते हैं आपको दूसरे कंट्रीज के कल्चर का भी ख्याल रखना पड़ेगा. Nike realized it had to authenticate its brand in other countries. So it focused on soccer, called football outside the United States, and became active as a sponsor of youth leagues, local clubs and national teams. तो नाइकी यूएस के बाहर जाना चाहता था तो बाहर की कंट्रीज में फुटबॉल बहुत पसंद है तो उसने नाइकी ने फुटबॉल को स्पॉन्सर करना चालू कर दिया. वैसे ही बहुत सारे यूथ लीग होते हैं उनको स्पॉन्सर करना चालू कर दिया, लोकल क्लब को स्पॉन्सर करना चालू कर दिया, नेशनल टीम को स्पॉन्सर करना चालू कर दिया. इससे वो नाइकी घर घर तक पहुंचने लगा. हाउएवर हाउएवर फॉर नाइकी टू बिल्ड ऑथेंटिसिटी among the soccer audience, consumers had to see professional athletes using its products, especially athletes who won. तो बाहर के देशों में अगर नाइकी को ग्लोबल ब्रांड देखना है तो
उनके जो पॉपुलर एथलीट्स है, जो कि सक्सेसफुल है, विनर है, उनको नाइकी के जो प्रोडक्ट्स है यूज करते हुए दिखाना चाहिए, ऐसा नाइकी ने सोचा। और वो जो एथलीट्स को एंडोर्स करते हुए करना उन्होंने चालू कर दिया। Nike's big break came in 1994 when the Brazilian team, the only national team for which Nike had any real sponsorship, won the World Cup. 1994 में नाइकी को जैकपॉट लग गया, ब्राजीलियन टीम वर्ल्ड कप जीत गई फुटबॉल का, और नाइकी ने सिर्फ एक ही टीम को स्पॉन्सर किया था, वो ब्राजीलियन टीम थी। इसीलिए नाइकी का एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। That victory transformed Nike's international image from a sneaker company into a brand that represented emotion, allegiance and identification. तो 1994 के ब्राजीलियन विक्ट्री के बाद नाइकी एक बड़ा ग्लोबल ब्रांड बन गया। ये एक छोटा ब्रांड नहीं था, इंटरनेशनल ब्रांड बन गया था। और वो लोगों के इमोशन को रिप्रेजेंट कर रहा था, लोगों के आइडेंटिफिकेशन को, उनके जो जो स्पोर्टिंग स्पिरिट है, उनके उनकी उनकी जो पर्सनालिटी है, उनको रिप्रेजेंट करने लगा था। नाइकीज न्यू अलायंस विथ सॉकर हेल्प प्रोपेल द ब्रांड्स ग्रोथ इंटरनेशनली। नाइकीज न्यू अलायंस विद द सॉकर हेल्प प्रोपेल द ब्रांड्स ग्रोथ इंटरनेशनली। तो सॉकर या फुटबॉल बहुत ही बड़ा, बहुत ही वाइडली देखे, जो फुटबॉल है वो बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे कंट्रीज में पॉपुलर है। तो उसको स्पॉन्सर करने से नाइकी को बहुत पॉपुलैरिटी मिली। In 2003, overseas revenues surpassed US revenues for the first time in 2000, and in 2007, Nike acquired Umbro, a British maker of soccer-related footwear, apparel and equipment. 2003 में यूएस के बाहर से कंट्रीज से नाइकी को ज़्यादा रेवेन्यू आने लगा और यूएस से कम रेवेन्यू आने लगा कंपैरेटिवली। तो यूएस के बाहर से कंट्रीज से सपोज 51% रेवेन्यू आने लगा और यूएस से 49% रेवेन्यू आने लगा। दिस इज एग्जाम्पल, एक्चुअल फिगर्स में भी वेरी। इन 2007, 2007 में उम्रो करके एक कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी थी, वो फुटवेयर में थी, एपरल में थी और जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में थी, उसको एक्वायर कर लिया और नाइकी और बड़ी बन गई। द एक्विजिशन मेड नाइकी द सोल सप्लायर टू मोर देन 100 प्रोफेशनल सॉकर टीम्स अराउंड द वर्ल्ड एंड बूस्टेड नाइकीज इंटरनेशनल प्रेजेंस एंड ऑथेंटिसिटी इन सॉकर। तो ये उम्रो जो कंपनी थी ब्रिटिश, ये परचेस करने के बाद, एक्वायर करने के बाद, जो नाइकी थी 100 कंट्रीज में पहुंच गई, क्योंकि ये उम्रो जो कंपनी थी 100 कंट्रीज में फुटबॉल के जो प्रोडक्ट्स, फुटबॉल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स थे, वो प्रोवाइड करती थी। द कंपनी सोल्ड उम्रो इन 2012 फॉर 225 million. In recent years, Nike's international efforts have been focused on emerging markets. During 2008 Summer Olympics in Beijing, Nike honed in on China and developed an aggressive marketing strategy that countered Adidas' sponsorship of the Olympic game. तो 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक्स हुए, उसमें नाइकी को चाइना में अपर हैंड मिला और नाइकी उसका मेन स्पॉन्सर बन गया और एडिडास को स्पॉन्सरशिप नहीं मिली। नाइकी रिसीव्ड स्पेशल परमिशन फ्रॉम द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी टू रन नाइकी एड्स फीचरिंग ओलंपिक एथलीट्स ड्यूरिंग द गेम्स। तो नाइकी को स्पेशल परमिशन भी मिल गई कि ओलंपिक के दौरान वो कुछ अपने कस्टमाइज एडवर्टीजमेंट दिखाए। इन एडिशन, नाइकी स्पॉन्सर्ड सेवरल टीम्स एंड एथलीट्स इंक्लूडिंग most of the Chinese. In addition, Nike sponsored several teams and athletes, including most of the Chinese teams. This aggressive sponsorship strategy helped ignite sales in the Asian region by 15%. तो जो ओलंपिक्स हुए चाइना में, उसकी लगभग सभी टीमों को नाइकी ने स्पॉन्सर किया था। इसीलिए एशियन रीजन में नाइकी का जो मार्केट शेयर है 50% से ज़्यादा बढ़ गया। इन एडिशन टू एक्सपांडिंग ओवरसीज, नाइकी हैज सक्सेसफुली एक्सपांडेड इट्स ब्रांड
into many sports and athletic categories including footwear, apparel and equipment. तो नाइकी सिर्फ स्पोर्ट्स तक लिमिटेड नहीं रहा, फुटवेयर में, apparel में और इक्विपमेंट में भी ये बड़ा ब्रांड बन चुका था. Nike continues to partner with the high profile and influential athletes, coaches, teams and leagues to build credibility in these categories. तो नाइकी ने कोचेस को, टीम को, लीग्स को, एथलीट्स को स्पॉन्सर करना चालू कर दिया और उनके थ्रू अपना जो प्रोडक्ट्स बेचना या ब्रांड एंडोर्समेंट करना चालू कर दिया. फॉर एग्जाम्पल, नाइकी अलाइंड विथ टेनिस स्टार्स मारिया शेरापोवा, रॉजर फेडरर एंड राफेल नदाल टू पुश इट्स लाइन ऑफ टेनिस क्लोथिंग एंड गियर. तो टेनिस क्लोथिंग की प्रोडक्ट्स परचेस करने के लिए, सेल करने के लिए नाइकी ने मारिया शरापोवा जो कि रशियन है, आई थिंक, रोजर फेडरर एंड राफेल नदाल को रफाल नदाल को स्पॉन्सर कर दिया. स्पॉन्सर या ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर बना दिया. Some called a famous 2008 Wimbledon match between Roger Federer and Rafael Nadal, both dressed in swoosh from head to toe, a 5-hour Nike commercial valued at 10 million. तो बहुत ही एक फेमस मैच हुआ था 2008 में विंबलडन में. तो वहाँ पे रोजर फेडरर और राफेल नदाल दोनों को नाइकी ने स्पॉन्सर किया था. To promote its line of basketball shoes and apparel, Nike has partnered with the basketball superstars such as Kobe Bryant and LeBron James. तो अभी फुटबॉल से लेके, एथलेटिक्स से लेके फुटबॉल पे नाइकी चला गया है, फुटबॉल से लेके टेनिस पे चला गया है, टेनिस से लेके अभी बास्केटबॉल पे चला गया. तो बास्केटबॉल में जो फेमस सक्सेसफुल विनर जो प्लेयर था, जो कोबे ब्रायंट और ली ब्रॉन, इनको ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया. इन गोल्फ, नाइकी सोश अपीयर्स ऑन मेनी गोल्फर्स बट मोस्ट फेमसली टाइगर वुड्स. तो नाइकी ने उसके बास्केटबॉल के बाद गोल्फ पे फोकस किया और टाइगर वुड्स को ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए हायर कर लिया. इन द ईयर सिंस नाइकी फर्स्ट पार्टनर विद द वुड्स, नाइकी गोल्फ हैज ग्रोन into 523 million business and literally changed the way golfers dress and play today. तो टाइगर वुड्स को एंडोर्समेंट के लिए या फिर ब्रांड एम्बेसडर बनाने के बाद नाइकी गोल्फ कंपनी $523 million का बन चुका था और बहुत बड़ा सब्सिडरी बन चुका था. और उसने गोल्फर का खेलने का तरीका और ड्रेस करने का तरीका दोनों चेंज कर दिया. टाइगर्स पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन द गेम एंड हिज स्टाइल हैज टर्न द ग्रीन्स एट द मेजर्स इनटू गोल्फ फैशन रनवे. तो टाइगर वुड्स को एम्बेसडर बना के नाइकी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ. Nike is the biggest sponsor of the athletes in the world and plans to spend more than 3 billion in athletic endorsement between 2012 to 2017. तो नाइकी अभी बहुत बड़ा स्पॉन्सर, सबसे बड़ा स्पॉन्सर बन चुका है एथलीट्स का. एंड 2012 से 2017 के बीच में 3 बिलियन स्पेंड करने वाला है एंडोर्समेंट पे. तो ये देखो, इसका सिर्फ एंडोर्समेंट के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स बेच रहा है. प्रोडक्ट्स तो उसका अच्छा है बट उसका स्ट्रैटेजी देखो. द कंपनी ऑल्सो हैज अ हिस्ट्री of standing by its athletes such as Tiger Woods and Kobe Bryant even as they struggle with the personal problem. तो जो टाइगर वुड्स को और कोबी ब्रायंट्स को जब पर्सनल प्रॉब्लम हुए उनके साथ, तब भी कंपनी ने उनको छोड़ा नहीं, उनको सपोर्ट किया. इट्स सीवियर्ड its relationship with the Lance Armstrong in 2012. However, after strong evidence showed that the cyclist doped during his time as an athlete and while competing during all Tour de France. तो लांस आर्मस्ट्रॉन्ग जो था उसने ड्रग्स लिया था. ड्रग्स इन द सेंस कुछ डोपिंग या जो रिस्ट्रिक्टेड केमिकल्स थे, जो कि परफॉर्मेंस एनहांसमेंट केमिकल्स थे, उसका सेवन किया था, वो कंज्यूम किया था. उसके लिए 2012 में उसका इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया था. और वहाँ पे जब लांस आर्मस्ट्रॉन्ग जो एंडोर्स कर रहे थे नाइकी, तो उसकी वजह से
लांस आर्मस्ट्रॉन्ग की वजह से नाइकी ब्रांड भी प्रॉब्लम में आ चुका था. नाइकी रिलीज्ड अ स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग नाइकी डज नॉट कंडोन द यूज ऑफ इलीगल परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स इन एनी मैनर. तो नाइकी ने तुरंत स्टेटमेंट जारी कर दिया कि हम किसी भी जो परफॉर्मेंस एनहांस करने वाले केमिकल को सपोर्ट नहीं करते. प्रायर टू द स्कैंडल द कंपनी हैड हेल्प develop Armstrong's Livestrong campaign to raise funds for the cancer. इसके पहले नाइकी ने आर्मस्ट्रॉन्ग का जो एक कैंपेन था कैंसर को हेल्प करने के लिए, लिव स्ट्रॉन्ग, तो उसको बहुत ज़्यादा फंड्स किया था, सपोर्ट किया था, स्पॉन्सर किया था. इट डिजाइंड, मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड मोर देन 80 मिलियन येलो लिव स्ट्रॉन्ग ब्रेसलेट, नेटिंग 500 मिलियन फॉर द लांस आर्मस्ट्रॉन्ग फाउंडेशन. तो यहाँ पे लिव आर्मस्ट्रॉन्ग के ब्रेसलेट इन्होंने बनाए थे येलो, और ये 18 मिलियन मतलब 8 करोड़ से भी ज़्यादा ब्रेसलेट बनाए थे, और उसके ज़रिए $500 मिलियन उन्होंने कमाए थे या जनरेट किए थे और कंट्रीब्यूट किए थे लांस आर्मस्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए. While Nike's athletic endorsement help inspire and reach consumers, while Nike's athletic endorsement help inspire and reach consumers, its most recent innovation in technology have resulted in more loyal and emotionally connected consumers. तो नाइकी सिर्फ एंडोर्समेंट ही नहीं कर रहा है, नाइकी इनोवेशन भी कर रहा है, और उसके इनोवेशन के थ्रू नाइकी को नाइकी के कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, और जैसे ही कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, जैसे ही कस्टमर देख रहे हैं कि नाइकी के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, सुपीरियर क्वालिटी के हैं, लग्जूरियस है, परफॉर्मेंस अच्छा देते हैं, तो क्वालिटी की वजह से कस्टमर्स लॉयल हो गए और इमोशनली कनेक्टेड हो गए. कोई भी जब ब्रांड बड़ा बनता है, स्पेशली लग्जूरियस ब्रांड, तो उसको एक कल्ट कस्टमर्स मिल जाते हैं, उसका एक अलग तरीके के इमोशनल कनेक्शन हो जाता है कस्टमर के साथ. फॉर एग्जाम्पल, नाइकीज लीड इन द रनिंग कैटेगरी हैज ग्रोन टू 60% मार्केट शेयर थैंक्स टू इट्स रिवॉल्यूशनरी रनिंग एप्लीकेशन एंड community called Nike Plus. For example, Nike's lead in the running category has grown to 60% market share thanks to its revolutionary running application. तो नाइकी ने शायद मुझे रनिंग के लिए कुछ इक्विपमेंट्स बनाए हैं, जैसे नाइकी प्लस, कम्युनिटी एंड दैट रनिंग एप्लीकेशन. तो उसकी वजह से नाइकी का मार्केट शेयर 60% से ज़्यादा बढ़ चुका है. तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि नाइकी एक स्पोर्ट्स में एंटर करता जा रहा है, और वहाँ पे ब्रांड एंडोर्समेंट करते जा रहा है, और कस्टमर जनरेट करते जा रहा है, और मार्केट डेवलप करते जा रहा है. नाइकी प्लस अलाउज रनर्स टू एंगेज इन द अल्टीमेट रनिंग एक्सपीरियंस बाय सीइंग their रियल टाइम पेस, distance and route, and by giving them कोचिंग टिप्स एंड ऑनलाइन शेयरिंग कैपेबिलिटीज. सो आई थिंक नाइकी प्लस एक ऐसा इक्विपमेंट्स है जो रनर्स को गाइड करता है, किस डायरेक्शन में जाना है, कितना स्पीड से भागना है, कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर करना है, रूट कहाँ है वगैरह. कोचिंग टिप्स भी देता है, और बहुत सारा इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करता है. तो नाइकी प्लस एक इक्विपमेंट है जो कि रनर्स को गाइड करता है. नाइकी एक्सप्लेन Nike expanded Nike Plus to focus on key growth areas like basketball and exercise, and recently launched Nike Plus Basketball, Nike Plus Kinect, and Nike Plus Field Band, and a bracelet और ऐप दैट ट्रैक्स डेली एक्टिविटीज. सो ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में उसने नाइकी ने एंट्री किया है. लाइक मेनी कंपनीज नाइकी इज ट्राइंग टू मेक इट्स कंपनी एंड प्रोडक्ट्स मोर इको फ्रेंडली. तो हर कंपनी के जैसे नाइकी भी अपना प्रोडक्ट्स इको फ्रेंडली बना रहा है. हाउएवर, अनलाइक मेनी कंपनीज, इट डज नॉट प्रमोट दीज एफर्ट्स on brand consultant explained Nike has always been about winning. तो नाइकी विनिंग को एक सिनोनिम बन चुका है. नाइकी मतलब विनर, नाइकी मतलब विनिंग स्पिरिट, नाइकी मतलब स्पोर्टमैन स्पिरिट, नाइकी मतलब हेल्दी कंपटीशन. ये नाइकी के एसोसिएशन बन चुके हैं.
How is sustainability relevant to its brand? Nike executives agree that promoting an eco-friendly messages would distract from its sleek, high-tech image, so efforts like recycling old shoes into new shoes are kept quiet. तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जब नाइकी टेक्नोलॉजी पे फोकस करता है, जब नाइकी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स पे फोकस करता है, जब नाइकी जब टेक्नोलॉजी पे फोकस करता है, नाइकी जब विनिंग स्पिरिट पे फोकस करता है, नाइकी जब एंडोर्समेंट करता है, नाइकी जब एडवांस लग्जरियस क्वालिटी प्रोडक्ट पे फोकस करता है, तो कहीं ना कहीं पे सस्टेनेबिलिटी या रिसाइकलिंग के ऊपर नाइकी उतना ध्यान नहीं देता। तो वहाँ पे रिसाइकलिंग या सस्टेनेबिलिटी जो एक बहुत बड़ा ये है कंपोनेंट है किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उस पे काम नहीं हो रहा है, बट इट डज नॉट मैटर नाइकी। बट नाइकी ने उस पे काम करना चालू कर दिया है। As a result of its successful expansion across geographical market and products categories, Nike is the top athletic apparel and footwear manufacturer in the world. तो नाइकी अभी दुनिया में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, एक बहुत बड़ा कंपनी बन चुका है, और बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है, और ये एपरल और फुटवेयर में बहुत सक्सेस कमा रहा है। In 2014, revenues exceeded 27 billion and Nike dominated the athletic footwear market with 31% market share globally and 50% market share in United States. तो ग्लोबली इसका मार्केट शेयर 31 है, ये 27 बिलियन से भी बड़ा ब्रांड बन चुका था 2014 में, और 50% से भी ज़्यादा मार्केट शेयर यूनाइटेड स्टेट में है, 50% से भी ज़्यादा मार्केट शेयर यूएस अमेरिका में है, 30% से ज़्यादा मार्केट शेयर ऑल ओवर वर्ल्ड में है, 27 बिलियन का ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। Swooshes abound on everything from the wristwatches to skateboards to swimming caps. Firm's long-term strategy, however, is focused on running, basketball, football, soccer, men's training, women's training and action sport. तो ये देखो कितने जगह पे मतलब जो नाइकी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कितना बड़ा बन चुका है। रिस्ट वॉच बेचता है, स्केटबोर्ड्स बेचता है, स्विमिंग कैप बेचता है, देन रनिंग इक्विपमेंट्स बेचता है, बास्केटबॉल रिलेटेड इक्विपमेंट्स बेचता है, फुटबॉल रिलेटेड इक्विपमेंट बेचता है, मेंस ट्रेनिंग से रिलेटेड, विमेंस ट्रेनिंग से, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से रिलेटेड इक्विपमेंट्स बेचता है, फिर एक्शन स्पोर्ट्स कैटेगरी में भी ये प्रोडक्ट्स बेचता है। So there are some questions for you. First question is, what are the pros and cons and risks associated with the Nike's core marketing strategy? Core marketing strategy Nike का है कि ब्रांड एंडोर्स करके अपने प्रोडक्ट्स सेल करना है। एक्चुअली ये बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी है, बहुत सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी है, इसकी वजह से ही नाइकी बहुत बड़ा बना है। रिस्क ये होता है कि जब कोई कंट्रोवर्शियल प्रॉब्लम होता है किसी खिलाड़ी के साथ, जैसे टाइगर वुड्स के साथ हुआ कि उसके इलीगल रिलेशनशिप थे बहुत सारे गर्ल्स के साथ, और वो लॉयल नहीं था अपने वाइफ के साथ, तो कहीं ना कहीं जो ब्रांड एंडोर्समेंट है, ब्रांड एम्बेसडर जब आप बनाते हो किसी रॉन्ग पर्सन को, तो उससे प्रोडक्ट का इमेज भी हार्म होता है। अदरवाइज ब्रांड एंडोर्समेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। टॉप के सेलिब्रिटीज़ को और एथलीट्स को ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ये प्रूवन स्ट्रेटेजी है, और उससे बहुत ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, और ये एक इकोनॉमिकली साउंड स्ट्रेटेजी है मार्केटिंग की, एडवर्टीजमेंट की और प्रमोशन की। इफ़ यू वेयर एडिडास, हाउ वुड यू कम्पीट विथ नाइकी? तो एडिडास को क्वालिटी पे फोकस करना पड़ेगा और कम्युनिकेशन पे फोकस करना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है नाइकी से, तो उसको प्राइस भी कम करना पड़ेगा कंपेयर टू नाइकी, सो दैट पीपल वुड अफोर्ड एडिडास। बट एडिडास को मैं यहाँ पे सोल्यूशन ये बताया कि एडिडास को क्वालिटी इंप्रूव करना पड़ेगा, प्राइस कम करना पड़ेगा, और वो चीज़ उनका क्वालिटी सुपीरियर है नाइकी से एट लेस प्राइस, वो कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, और नाइकी का स्ट्रैटेजी ही यूज़ करना पड़ेगा ब्रांड एंडोर्समेंट का। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।